سیلاب قدرتی آفت ہے یا مس مینجمنٹ؟ سیلاب آنے کی اصل وجہ کیا ہے؟ گلیشیئر پھٹنے کا معاملہ کیا ہے؟ کلاؤڈ برسٹ کیوں معمول بن رہا ہے؟ کراچی میں تو دریا نہیں ہے، وہاں سیلاب کیسے آتا ہے؟ اربن فلڈنگ کو روکنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ کیا ڈیم بنا کر سیلابی ریلوں کو روکنا ممکن ہے یا یہ صرف خام خیالی ہے؟ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نئی سوچ اور میں ہوں عروج شبیر۔ آج کل سیلاب نے ملک بھر میں تباہی مچا رکھی ہے۔ ہر شخص کسی نہ کسی طرح سیلاب کی مشکلات جھیل رہا ہے اور بہت سے لوگ اسی سوچ میں غرق ہیں کہ اس قدرتی آفت سے بچا کیسے جا سکتا ہے۔ یقیناً آپ کے ذہن میں بھی ایسے بہت سے سوالات ہوں گے، تو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کے ان تمام سوالوں کا جواب دیں گے۔ لیکن ذرا ٹھہریں، اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے یہ کام کر لیں تاکہ ہماری معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں شمالی علاقوں کے سیلاب کی، کہ وہاں سیلاب آنے کی وجوہات کیا ہیں اور ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین، شمالی علاقوں میں سیلاب آنے کی سب سے بڑی وجہ گلیشیئر کا پھٹنا قرار دی جا سکتی ہے۔ گلیشیئر پھٹنا کسے کہتے ہیں؟ اسے آسانی کے لیے آپ یوں سمجھیں جیسے آپ کے پاس ایک غبارے میں بہت سی برف موجود ہے۔ درجہ حرارت میں اضافے سے وہ برف پگھلے گی اور غبارہ پانی کا بوجھ برداشت نہ کرنے کی وجہ سے پھٹ جائے گا اور اس میں موجود سارا پانی یکدم نیچے آ جائے گا۔ ہندو کش میں ایسے کئی گلیشیئرز موجود ہیں جہاں برس ہا برس سے ہزاروں ٹن برف جمی ہے۔ یہ برف چاروں طرف سے پہاڑوں، پتھروں اور مٹی سے گری ہوئی ہے۔ درجہ حرارت بڑھنے کی وجہ سے پہاڑوں کے اندر موجود گلیشیئرز مسلسل پگھل رہے ہیں اور جب کوئی بڑا گلیشیئر پگھلتا ہے تو وہاں ہزاروں کیوسک پانی جمع ہو جاتا ہے اور اس کے اطراف جمی مٹی یا پتھر جہاں سے بھی اسے راستہ ملتا ہے، جگہ ملتی ہے، یہ پانی پورے پریشر کے ساتھ اپنا سفر شروع کرتا ہے اور جہاں جہاں سے گزرتا ہے تباہی مچاتا چلا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ جان کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ اقوام متحدہ کے ادارے برائے ترقیاتی پروگرام کے ایک اندازے کے مطابق ہندو کش ہمالیہ میں 3044 گلیشیئر جھیلیں موجود ہیں، جن میں سے 33 جھیلیں ایسی ہیں جو کسی بھی وقت پھٹ سکتی ہیں اور اس سے 70 لاکھ افراد متاثر ہو سکتے ہیں۔ ناسا کی تحقیق میں کہا گیا ہے کہ 1994 سے 2017 کے درمیان دنیا کی گلیشیئر جھیلوں نے 65 کھرب ٹن پانی کا اخراج کیا ہے۔ گزشتہ 100 سال میں سمندر کی سطح میں 35% اضافہ صرف گلیشیئرز کے پگھلنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ موسمی تبدیلی کے باعث گلیشیئر جھیلوں میں تواتر سے اضافہ ہو رہا ہے اور اگر بروقت ٹھوس اقدامات نہ کیے گئے تو حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ ان جھیلوں کے گرد ایسے انجینئرنگ سٹرکچرز کھڑے کیے جائیں جن سے اس سے ہونے والے نقصان کو کم سے کم کیا جا سکے۔ موسمی تبدیلی کے علاوہ ان علاقوں میں جنگلات کی کمی بھی گلیشیئرز جھیلوں سے ہونے والی تباہی کی ایک بڑی وجہ ہے۔ ملک کے شمالی علاقوں میں کم از کم 20 لاکھ افراد ایندھن کے لیے لکڑی استعمال کرتے ہیں اور اس کے لیے ظاہر ہے وہ درخت کاٹتے ہیں، جس کے باعث جنگلات میں تیزی سے کمی ہو رہی ہے اور گلوبل وارمنگ سے گلیشیئر پگھلتے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ان علاقوں میں سیلاب کی ایک بڑی وجہ کلاؤڈ برسٹ ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ کلاؤڈ برسٹ ہوتا کیا ہے۔ آپ نے موسلا دھار بارش تو دیکھی ہوگی، لیکن کلاؤڈ برسٹ اس سے کہیں زیادہ تیز بارش ہوتی ہے، بلکہ اس کو برساتی طوفان کہیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ سائنس کے مطابق جب زمین کی سطح یا بادلوں سے نیچے گرم ہوا کی لہریں ہوں، ایسی صورت میں بادلوں سے برسنے والی بارش زمین کی سطح پر پہنچنے سے پہلے دوبارہ بخارات کی صورت میں اوپر بادلوں پر پہنچنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس طرح بادل بھاری ہونے لگتے ہیں کیونکہ بارش کے پرانے قطرے نئے قطروں کو اوپر کی جانب دھکیلتے ہیں۔ یہی اوپر کی جانب بڑھتا دباؤ بادل برداشت نہیں کر پاتا اور پھٹ جاتا ہے۔ اس صورت میں بارش کی بوندوں کی رفتار 100 کلومیٹر تک پہنچ جاتی ہے۔ جہاں بادل پھٹتا ہے وہاں ایک گھنٹے میں کم از کم 200 ملی میٹر بارش ہوتی ہے اور سیلابی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ کلاؤڈ برسٹ بھی ایک قدرتی آفت ہے۔ حالیہ کچھ برسوں میں پاکستان کے شمالی علاقوں اور آزاد کشمیر میں
क्लाउड ब्रस्ट या बादल फटने के वाक़यात ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। तीसरी बड़ी वजह इन इलाकों में दरियाओं का चढ़ आना है। पाकिस्तान के बेशतर दरिया इन्हीं इलाकों से गुजरते हैं। दरिया में सैलाब की वजह जानने के लिए आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि क्यूसिक किसे कहते हैं। जिस तरह वज़न के लिए ग्राम, फासले के लिए मीटर के पैमाने इस्तेमाल किए जाते हैं, इसी तरह पानी के बहाव के लिए क्यूसिक का पैमाना है। क्यूसिक खुद क्यूबिक फीट पर सेकंड का मुख़फ़्फ़फ़ है। एक क्यूबिक फीट में तकरीबन 28.3 लीटर पानी आता है। लिहाजा जब हम कहते हैं कि किसी दरिया में 5 लाख क्यूसिक का रेला गुज़र रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि वहाँ से एक सेकंड में 1,41,58,000 से ज़ायद का पानी गुज़र रहा है। इसी तनासब से गुज़रने वाले पानी की एक घंटे की मिक़दार 50,97,03,24,000 लीटर से ज़्यादा बनती है। नाज़रीन, दरियाओं में पानी पहाड़ों पर बर्फ़ पिघलने से आता है, लेकिन मानसून के दौरान बरसाती पानी भी दरिया का हिस्सा बनता है। जिन इलाकों में बरसाती पानी दरिया में गिरता है, इन्हें कैचमेंट एरियाज़ कहा जाता है। पहाड़ों पर बर्फ़ पिघलने का अमल तेज़ हो या कैचमेंट एरियाज़ में बारिशें ज़्यादा हो जाएं, तो दरिया में इसकी कैपेसिटी से ज़्यादा पानी आ जाता है, जिसको सैलाब कहते हैं। पानी का ये तेज़ बहाव दरिया के तरफ न सिर्फ ज़मीनी कटाव का बाइस बनता है, बल्कि जहाँ बंद कमज़ोर होते हैं वहाँ से निकलकर शहरी आबादी और ज़रई ज़मीनों को नुकसान पहुँचाता है। दरियाए काबुल, दरियाए सवात, दरियाए सिंध शुमाली इलाक़ाजात में सैलाब का महाज है। शुमाली इलाकों के बाद बात करते हैं सिंध और बलूचिस्तान के सैलाब की। यहाँ मानसून की मामूल से ज़्यादा बारिशें सैलाब का मौजब बनती हैं। हालिया सैलाब की वजूहात जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि पाकिस्तान में मौसम गर्मा के दौरान मौसमियाती सूरत हाल क्या रहती है और इस दौरान बारिश बरसाने वाला मानसून सिस्टम कहाँ से आता है और अमूमन कहाँ बरसता है। तो नाज़रीन, ये मौसमियाती निज़ाम दरअसल खलीज बंगाल या बहीरा अरब से शुरू होकर इंडिया में बरसते हुए पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में पहुँचता है। यहाँ इसका मिलाप मगरिब से आने वाली हवाओं से होता है, जिसके बाद ये बारिश बरसाने का बाइस बनता है। ताहम इस मरतबा मौसम गर्मा की सूरत हाल शुरू से ही खासी गैर मामूली रही है। इस साल पाकिस्तान में अप्रैल के महीने में दर्जा हरारत मामूल से 5 डिग्री ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है। यानी अगर अप्रैल में मामूल का दर्जा हरारत 31 डिग्री होता था, तो इस साल 36 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब रहा है। लिहाजा मानसून बारिशों का सिस्टम भी बदल गया और इस बार मानसून के तमाम 5-6 स्पेल खलीज बंगाल से होते हुए इंडिया में इस दफ़ा मामूल से कम बरसे और पाकिस्तान में अमूमी तौर पर शुमाली और बलाई इलाकों में बरसने की बजाय वो सिंध और बलूचिस्तान में जाकर बरसे। आम तौर पर बलूचिस्तान में मानसून सिस्टम नहीं जाता और मगरबी मौसमी सिस्टम्स के ज़रिए बारिशें होती हैं, लेकिन इस मरतबा ये पैटर्न टोटली तब्दील हो गया और सिंध से होता हुआ मानसून सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल हुआ और यूं जो बारिश पाकिस्तान के शुमाली इलाकों से शुरू होती थी, वो इस मरतबा बलूचिस्तान और सिंध से शुरू हुई, जो सैलाब का बाइस बनी। अब आपको बताते हैं कि पंजाब में सैलाब क्यों आता है। पंजाब में सैलाब की बात करें तो वस्ती पंजाब में इंडिया की जानिब से छोड़े गए इजाफी पानी और पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में होने वाली बारिश के बाइस पानी आता है। भारत में पंजाब और हिमाचल प्रदेश में अगर मामूल से ज़्यादा बारिशें हों तो वो रावी और चनाब में पानी छोड़ता है और ये सैलाबी पानी आम तौर पर पाकिस्तान में वस्ती पंजाब के अजला को ज़्यादा मुतासिर करता है। जनूबी पंजाब के अजला में सैलाब दरियाए सिंध में तुग़यानी के बाइस आता है। इसके अलावा कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिले में होने वाली बारिशें और इससे निकलने वाले बरसाती नाले जनूबी पंजाब में सैलाब लाते हैं। कोहे सुलेमान पर ज़्यादा बारिशें हों तो वो सारा पानी इन नालों में शामिल हो जाता है। ये नाले पहले ही काफ़ी पानी सूबा बलूचिस्तान से लेके आते हैं, इस तरह सैलाब की शक्ल बन जाती है। हालिया सैलाब में ज़्यादा नुकसान कोहे सुल्तान और छाछड़ जैसे नालों से आने वाले पानी ने किया है। सिर्फ कोहे सुल्तान से 40,000 क्यूसिक से ज़्यादा पानी गुजरा है। कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिले से होता हुआ ये नाला मैदानी इलाकों में दाखिल होकर फैलता चला जाता है और जनूब की तरफ कई किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए दरियाए सिंध में जा गिरता है। लेकिन दरिया में गिरने से पहले ये जिन रास्तों से गुजरता है, वहाँ की आबादियों में
तबाही मचाता हुआ गुजरता है। आखिर में अब बात करते हैं कराची में आने वाले सैलाब की, जहाँ ना दरिया है, ना ग्लेशियर्स हैं, ना क्लाउड बर्स्ट होता है, लेकिन तकरीबन हर साल यहाँ सैलाबी सूरत हाल पैदा हो जाती है। नाजरीन, दरअसल कराची में सैलाब अर्बन फ्लडिंग की वजह से होता है। अर्बन फ्लडिंग निकासी के निज़ाम और नदी नालों का एक फितरी रद्द अमल है। ये उस वक्त होता है जब निकासी आब के रास्ते भर जाते हैं। नदियाँ और नाले शदीद मौसमी हालात से पैदा होने वाले ज़रूरत से ज़्यादा पानी को मज़ीद एडजस्ट नहीं कर सकते। इसके बाद निकासी आब के रास्ते अपने कुदरती या मसनूई किनारों से ऊपर हो जाते हैं और पानी आसपास के इलाकों में दाखिल होकर अर्बन फ्लडिंग और सैलाबी सूरत हाल का बाइस बनता है। कराची दरअसल एक नाहमवार मैदानी इलाका है। शहर के दरमियान से दो नदियाँ गुजरती हैं, मलीर नदी और लियारी नदी। इसके साथ साथ शहर से कई और छोटी बड़ी नदियाँ भी गुजरती हैं जो बारिशों के मौसम में ख़तरनाक साबित हो सकती हैं। इलाकाई जोग्राफिया से नावाकिफ़ लोग मलीर नदी की तुगयानी को कराची शहर में होने वाली बारिश के तनाज़ुर में देखते हैं, लेकिन दर हकीकत ऐसा बिल्कुल नहीं है। सारा साल खुश्क रहने वाली मलीर नदी केथर पहाड़ी सिलसिले और बलूचिस्तान से आने वाली बरसाती पानी को समुंदर तक पहुंचाने का सदियों पुराना कुदरती रास्ता है। हो सकता है कराची शहर में बारिशें कम हुई हों, लेकिन पहाड़ी सिलसिले और बलूचिस्तान से आने वाले पानी मलीर नदी में तुगयानी ले आई, जो कराची में सैलाब का बाइस बनता है। इसके अलावा गुडाब के इलाके से गुजरने वाली थद्दू नदी और लिट नदी के कैचमेंट एरियाज भी करीब ही हैं। इसलिए बारिश के बाद इन नदियों में पानी का फ्लो फौरी तौर पर तेज़ हो जाता है। कराची में बरसाती नालों पे आबादियों का बनना और नालों की सफाई ना होना भी अर्बन फ्लडिंग की एक बड़ी वजह है। नालों की ज़मीन पर बनने वाली हाउसिंग सोसाइटीज़ और मकानात पानी का शहर से अखराज नहीं होने देते और ये पानी शहर में जमा होकर तबाही फैलाता है। ये तो थी मुल्क भर में सैलाब आने की वजूहात। अब आपको बताते हैं कि इससे बचने के लिए इक़दाम क्या किए जाने चाहिए। तो नाजरीन, आपने देखा कि जिस तरह मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब आने की अलग अलग वजूहात हैं, इस तरह सैलाब को रोकने के लिए भी कई इक़दाम की ज़रूरत है। लेकिन इस सब में पहला और बुनियादी काम जो हम सबको करना चाहिए वो है दरख्त लगाना। सैलाब की बड़ी वजह मौसमियाती तब्दीली है। अगर हम दरख्त लगाएं तो इससे ना सिर्फ दर्जा हरारत कंट्रोल किया जा सकता है, बल्कि सैलाब की शिद्दत भी कम की जा सकती है। दूसरा बड़ा इक़दाम हुकूमती सतह पर होना चाहिए और वो है डैम बनाना। दरिया के रास्ते में डैम बनाकर हम ना सिर्फ सैलाब से बच सकते हैं, बल्कि इस पानी को सारा साल महफूज बनाकर बिजली बनाने और ज़रूरी मकासद के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और काम जो फौरी तौर पर किया जाना चाहिए वो दरियाओं और नदी नालों की ज़मीन का तयन करना है। पानी की गुजरगाहों पर हर किस्म की तमीरात पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद होनी चाहिए और जो तमीरात बन चुकी हैं उनको गिरा देना चाहिए, ताकि मुस्तकबिल में किसी भी जानी या माली नुकसान से बचा जा सके।